मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने आपको लिखवाए थे ना, मुझे बताएं आप। तो आपने वो व्हाइट बोर्ड में जो लिखा था ना, जी जी। वाला वो सर $99.24 क्वेश्चन आंसर 100.24 होगा। क्वेश्चन बताएं मुझे ज़रा। $99 124। अच्छा, $99 124। हाँ, कितना हो रहा है इसका, आप क्या बता रहे हैं? 100.24। जी, बिल्कुल सही है। 99 डॉलर्स एंड 124 सेंट्स इक्वल टू 100.24 डॉलर्स। दिस इज़ करेक्ट। जी हसन, आपने किया था ये वाला? Hassan, did you do this homework? Another question was from $6. What is what was the second question? सर वो सेकंड क्वेश्चन था $6, Hmm. $6.78। जी हाँ, सैद इमरान, इसका आप बताएंगे। $6.78। यस सैद इमरान। हसन। हसन, सैद इमरान। ओके इब्राहिम, व्हाट इज़ योर आंसर? 6.78। 6.78, वेरी गुड। सर वैसे आज क्यों बच्चा क्यों नहीं आया हुआ, बहुत कम असल में था। आज गर्ल्स सेक्शन की छुट्टी है ना, तो अम्मियाँ उठी नहीं है शायद। चले हम लोग अब ये वाला करते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। हमारा एक्टिविटी बुक कंप्लीट हो गया इब्राहिम, चैप्टर ये वाला, और प्यूपल्स बुक जी सर। के बस ये दो सवाल रह सर गए। पीपल्स बुक, सर पीपल्स बुक खत्म हो गया, सिर्फ इसके 2 सवाल बाकी हैं। और ये इसका भी एक सवाल यहाँ पे मुझे करवाना होगा, एक्टिविटी बुक का भी। ये टॉपिक आ गया असल में राउंडिंग का। ठीक है, मैं राउंडिंग का टॉपिक आपको समझाता हूँ। Our topic is rounding. Rounding off to the nearest dollar. वाह, गर्म हो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज़ तो सही आ रही है ना बेटा? यस सर। This is our topic, rounding off to the nearest dollar. Whenever we have any decimal number, for example we have a number 68.7. So this number is nearest to a whole number. These are the whole numbers, and dollar means whole number, a number in which no decimal is there. जी
बंद है. Whole number means without decimal, no decimal is there, that number is called whole number. So whenever this is written, rounding off to the nearest dollar or rounding off to the nearest centimeter, rounding off to the nearest rupee, so it means we are rounding off to the nearest whole number. So after the decimal there is a number that is 7 here. When this number is more than 4, so it will be rounded upward. For example, this is 68.7, so its answer will be 69. 69. And if it was a dollar, if it would be a dollar, so this will be, its answer will be $69. If this would be centimeter, so its answer is centimeter, 69 centimeter. So for example, if the number is 68.4, so its answer will be 68. So this number is near to 68. And if the number is in between, that is 68.5, so it will be rounded off upward. So 68.5, 68.5 will be go upward. $69. Now more example I am writing. If there are more than 2 decimals, for example, a number that is 23.34 or 28.49, so if the number is including more than 1 decimal, that is 2 decimal or 3 decimal, like 63.031, so and we have to, if the number has more than 1 decimal and we have to round it off to the nearest dollar or whole number or centimeter or rupee, so we will consider just the first digit after the decimal, that is the 10th digit. We will consider only 10th digit, and 10th digit, if the 10th digit is more than 4, we will add 1 to the previous number, that is ones number. Or if the number is less than 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0, so we will not add and we will write the answer as it is. The whole part of the number will be the answer. Okay, now who will tell the answer of this number 23.34? Yes. Nobody can? सर आप दोबारा समझा सकते हैं क्या? दोबारा समझा सकता हूँ मैं. ये वाला समझ आया 1 डेसिमल प्लेस का? जी सर, ये समझ. ये वाला आ गया ना? जी सर. चले, अच्छा ये आ गया तो फिर आप इसका बताएं मुझे. ठीक है, इब्राहिम बताएं मुझे. 89.8. यस. 90 सर. 90. वेरी गुड, 90 हो जाएगा. ठीक है. ओके हसन, नाउ यू विल टेल 102.3. यस.
Hassan Abdul Hakim. What will be the answer for this? 102.3. Okay, Fahad Atiq, Mujtaba, Said Imran, 100. जी सैद बोलो। 100. 100। 105. 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम ऑमिट कर देंगे और 2 आंसर हो जाएगा। ओके 56.5. Yes, who is going to tell the answer of? सर 102 कैसे आ गया? जी क्योंकि ये 0.4 जो है 0.4 से कम था, 0.4 से कम था, 5 से कम था, सो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ नंबर आ गया, ठीक है। कम नहीं करेंगे हम, होल पार्ट को कम नहीं करना है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो उससे कम नहीं हो सकता। जो गिवन वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकता, जो होल पार्ट है वो कभी कम नहीं हो सकता, वो ज़्यादा हो सकता है या फिर वही रहेगा। नॉट पॉसिबल दैट इट विल बी लेस देन द गिवन। यस, हु विल आंसर दिस? मुज्तबा, सैद इमरान, इब्राहिम, हसन। सर मैं बता दूं बताएं इब्राहिम। 60. No, 57 will be the answer. We will add 1 to the previous one if the number after the decimal is 5 or more. Okay. $39.6 जी, कौन बताएगा? बताएं। सर 40. 40, वेरी गुड, 40। चले अब ये हसन बताएंगे इसका। जी हसन, 41.4 में क्या होगा? जी सर 41.4 का आंसर क्या होगा? ये 42. 42। और कोई बता दे, क्या 42 होगा इसका? सर 41. 41 ही रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 है, तो इसका पॉइंट 41 ही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ कि वैन एवर वी हैव टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट डॉलर और होल नंबर, तो हम उसको सबसे पहले वाले डिजिट पॉइंट के बाद उसको कंसीडर करेंगे कि वो नंबर अगर 4 से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर 7 था तो हमने 1 ऐड कर लिया था होल नंबर में। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ज़्यादा था तो हमने 68 में 1 ऐड कर लिया था, 69 हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कम हो रहा है, कम है 5 से, तो हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ 68 आ गया, एज इट इज़ 68 आ गया। यहाँ पर देखिए 89.8 है, 8 इज़ मोर देन 4, और अगर नंबर लाइन पे इसको देखेंगे हम तो 8 वाला जो पार्ट होगा 0.8 वो या आगे की तरफ होगा, इस जगह कहीं होगा, तो इस वजह से वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाएगा, जो प्रीवियस नंबर है होल नंबर उससे 1 ज़्यादा हो जाएगा। 1 प्लस कर दिया तो इन दोनों को जब 1 प्लस किया तो 89 से 90 हो गया। यहाँ पे 0.3 था तो देयर विल बी नो चेंज इन द होल पार्ट, 102 इज़ रिटन एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें 56.5 था, हमें 1 ऐड किया और आंसर क्या आ गया, 0.6 होने की वजह से, 0.5 होने की वजह से 1 ऐड किया,
0.6 होने की वजह से 1 ऐड किया 39 में, 40 हो गया। 0.4 होने की वजह से कुछ भी ऐड नहीं किया, 45 एज इट इज़ आ गया। बिल्कुल सेम मेथड हम जितने भी डेसिमल प्लेस हैं उनमें भी करेंगे, सिर्फ हम इस वाले नंबर को कंसिडर करेंगे जो सर 10th नंबर है। जी बोले। सर 0.5 और 5.5 से ऊपर जो जी जी, उसको क्या 1 ऐड करेंगे 1 सर? ऐड कर देंगे उसमें जी, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह अब अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो है वो 5 है या उससे कम है। अगर 5 से कम होगा, जैसे कि यहाँ पे देखें 3 है, तो हम वही आंसर लिख देंगे जैसे कि 23 आंसर हो जाएगा। 4 है तो आंसर विल बी 28 एज इट इज़। देयर इज़ 0, आगे कुछ भी हो उसको हमें नहीं देखना, आगे कुछ भी हो उसे हमें नहीं देखना। जो फर्स्ट यानी 10th नंबर है हम उसको देखेंगे एंड वी विल राइट द आंसर। नाउ इट्स आंसर विल बी 63। द लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद में होमवर्क ही दे सकता हूँ, क्लास वर्क नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 72.56 जी, अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा बताएं। बताएं, कौन बताएगा। सर 73 73 हो जाएगा इसका। और अगर इस तरह होता 9.7 73 जी। मुश्तबा बताएंगे, और कोई बताएंगे इब्राहिम के अलावा? फ़हद, जी। लग रहा है किसी की समझ नहीं आया, बेटा बताएं अगर नहीं आया तो। 1 बाय 1 बताएं सबके, कितना समझ आया नहीं आया। सर मुझे तो समझ में आ गया। इब्राहिम को तो आ गया, मुश्तबा को नहीं आया, और सैद को नहीं आया, जायाम को भी नहीं आया। तो आप आंसर बताएं फिर। मुझे आ गया। फ़हद बताएं आंसर बेटा। सर किसका? 69.73 का, ये वाला। 70, वेरी गुड। अब हम आते हैं बुक की तरफ, ठीक है। इन द बुक देयर आर 2 questions given. One is question number 3. So try to do this in your homework. Today is 30. And another question in book, activity book. This one. Here are some items in sold. Write a list design rounded prices. Use your rounded prices to tell which items you can buy with $100. Rounded means same है, राउंडेड मीन्स इसका मतलब यही है कि आपने इसको डॉलर पे राउंड ऑफ करना है, जो हमने वहाँ किया था ना, डॉलर पे, नियरेस्ट डॉलर पे राउंड ऑफ करना है। ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी समझाए हैं वो उन सबको अगर हम डॉलर कंसीडर कर ले हर वैल्यू को, तो बस वो सिर्फ डॉलर का साइन लग जाएगा, ठीक है। अगर ये $72 होता, बस इसका आंसर क्या होता, $73। $69.73 है तो $70 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करें।
ठीक है, एक ये वाला, ये सर पेज नंबर पेज नंबर, लास्ट पेज ऑफ एक्टिविटी बुक और लास्ट पेज ऑफ पीपल्स बुक 161 और 160, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें। बस ये पे एक्टिविटी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। मैं अपने पास भी लिख लेता हूँ 161 and 160 in pupils book and 161 in activity book. Page 161 in activity book, question number 3. सर प्यूपल्स बुक का 3 और 4 करना है क्या? क्वेश्चन सिर्फ एक करना है उसका, क्योंकि वो 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 कर लें पीपल्स बुक का भी। पीपल्स बुक क्वेश्चन 3 4C होमवर्क। मुझे ये लग रहा है कि कुछ बच्चों का अभी भी समझ में नहीं आया। जी जी, चले क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। सर मुबीन कह रहे हैं आप ख़त्म कर दें, बच्चों को नाश्ता भी करना होगा। क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है बेटा मैं जी, 7 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। माशाल्लाह। मैं तो सर 7 बजे इब्राहिम नाश्ता- शेफ जो है ना 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं। इब्राहिम कह रहे हैं मैं 7 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 100 रुपए देना है भाई। सर फजर के थोड़ी देर बाद हम उठ जाते हैं, फिर उसके बाद खा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आपकी अम्मी उठा देती है ना, आपने आदत बनाई है माशाल्लाह। तो भाई मेरी सुन लो। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अस्सलाम वालेकुम। जी सर आ जाए, क्या बैलेंस डाल लें? 100 रुपए मुझे आपके देने थे। हाँ, हाँ, अभी मेरे तीनों लगातार कुछ देर पीरियड में भूल गया था। नाश्ते के लिए जाओ। मेरे भी नहीं अब इसमें चले नाश्ते के लिए चौथे में। फिर इसके अब शुरू होंगे 3, फिर 1 में चलेंगे पक्का। नहीं तो यार मैं तो वो लाया हूँ पराठा चाय लेकर आऊँ। वहाँ चलेंगे ना, उधर ठीक है यार। यहाँ तो आते यार हुए वो ठंडी इतना हो जाएगी। टाइम मैं बर्दाश्त करता हूँ। मुझे भी मैं नीचे से चाय बना के ले आता हूँ ना। शरीर भूख लग रही है, अभी आप गुजारा करो किसी तरह। यार सर में दर्द हो रहा है सर। अब मुझे नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा यार।